Yeah, let's start. Before that, look at the 69 days left. Yeah, the 70 days left. 69 days left. Okay. That's all you know. Here, I'm giving you a timetable for this 70 days or so, 69 days का timetable दे रहा हूँ. अच्छा खासा छुट्टी भी दे रहा हूँ. 11 hours break मिल रहा है पूरे दिन में. 13 hours studies including your online lecture. Get up at start studying from 8:30 to 11. 2.5 hours. Any subject, you decide which subject you want to start with. So I said subject 1. Take half an hour break there. Once. Take half an hour break. Okay. Then 11:30 you start with the second subject till 2 o'clock. Afternoon food थोड़ा सा लेट कर लेना, तो 2 बजे खा लेना. 2 to 2:45 लेक्चर चलो होने तक ब्रेक मिलेगा आपको 45 मिनट्स का. 2:45 to 6 ऑनलाइन लेक्चर्स till in the lectures. Then 6 to 6:45 again I'm giving you 45 minutes break. 6:45 to 9:15 subject 3, whatever your subject you want, you can take 2.5 hours. Again 9:15 to 10 break. 10 to 12:30 subject 4, 2.5 hours. 12:30 you sleep till 8 o'clock in the morning. 7:30 and 8 to 8:30 get ready. Half an hour is more than enough. Get ready. 5 minutes brush, 5 minutes shishu, 10 minutes bath and 10 minutes breakfast. Half an hour काफी हो गया ready होने के लिए. And start from 8:30 your studies. Now it depends again. You don't want to study till 12:30. You want to get up. Some of you are want to get up in early in the morning. In that case, you go to bed at 10 o'clock. तो 10 बजे बोला है सब्जेक्ट, वो फोर्थ सब्जेक्ट करो मत, सवेरे जल्दी उठ जाओ, तो फिर वो फोर्थ सब्जेक्ट उधर ले लेना. You can change accordingly. What I'm saying is make a timetable of 2.5 hours per subject. Okay, so 2.5 hours करेंगे, तो 2.5 hours per subject की बात कर रहा हूँ मैं. तो 2.5 hours into 40 days, तो 100 hours you'll get per subject. That is what I'm saying in the next. तो स्क्रीनशॉट लेना है. कुछ ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें ज्यादा पढ़ाई भी नहीं लगता है, ब्रेक भी अच्छा सा मिलता है. 30 मिनट्स ब्रेक, 45 मिनट्स ब्रेक, 2 लेक्चर के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक हो, 45 मिनट्स का ब्रेक. इतना ब्रेक सा गिवन. Then your revision. See here, what I'm saying is first finish revision of all subjects by 10th of October. आज 31st August है, तो सितंबर पूरा और अक्टूबर के 10 दिन दे रहा हूं. 40 days. 40 days into 10 hours per day आप करने वाले, 400 hours हो गए. 100 hours per subject मिल गया, काफी है. Then second revision in 18 days. Roughly in 50 days, 50 hours, finish the second. And then finish the third one also. Third revision of all subjects by 5th November. So you have 6, 7, 8 for that first subject. 3 दिन मिलेंगे, पूरा 24 घंटा नहीं तो तभी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे. 3 घंटा इसका भी मिलेगा, 13 hours पढ़ेंगे, तो ये 3 दिन में 40 hours हो जाएगा. ओके, सो 3 रिवीजन होने चाहिए. फर्स्ट 40 days में, सेकेंड 18 days में, ओके, एंड थर्ड इन 7 days. एंड देन फोर्थ आपके एग्जाम के पहले हो जाएगा वो. And this is your timetable here, A1 timetable. 9:30 lectures. Which lectures? Somebody said as we are having lectures from 9:30. Which lectures? College lectures. CFC. कौन सा? That day I asked you and you said this. That day when I asked, you said only. So accordingly I prepared the timetable. अब आपने मेरे को बोला नहीं है सब. अकाउंट्स एंड इंग्लिश के लेक्चर्स कितना बजे होता है, क्या होता है? यू नेवर सेड. यू सेड 2:45 से 6 बजे तक लेक्चर होता है. दैट डे आई आस्क्ड यू, accordingly I prepared. Okay, I'll check it out and accordingly I'll make another timetable.
Okay. So accordingly, I'll make another timetable then. I'll inquire with office A1 office what is your timetable, and accordingly I'll make new timetable then. Okay. So anyway, this is your online objective test for September 2020. This is only for my subjects. So when I say maths, whatever topics I have taken, last I have said dash disasa. So tomorrow is first, and you have maths test 25 marks. Set, sequence and series, and equation is the topic. Okay, I'll check your timetable and accordingly I'll let you know. I'll make another timetable and give you. Take screenshot of this. Tomorrow your test. I'll remind you again tomorrow. Set, sequence and series and equation. On 4th LR, full syllabus. 19 again, 13 again LR, full syllabus. 20 LR, just 10 marks, and maths 40 marks. Or we may make that I'll 20th, so I'll let you know by that time. Okay, we can make that maths पूरा 50 marks का maths बना सकते हैं. कि ऊपर 2 LR हो रहा है, 50 marks. This is what they have sent from A1. So we may cancel that LR later on, and we'll have only maths 50 marks. Full syllabus. Okay, full syllabus is what I have taught you. 6 chapters. Okay. So let's start up with the lecture. Screenshot हो गया इसका. Timetable, I'll make new timetable and I'll give you accordingly. Yes. Of revision, and then the last chapter which is left called as matrix. So matrices will be doing that. Okay, matrices here is easier than what you have in 12th. In 12th it is easy only, but still it is more easier than 12 here. Maybe 2 lectures are required, 2 to 3 lectures required for that matrices. Okay, so this week we'll finish off with your maths which is given to me, and then revision. Okay, I'll give you topics, which topic I'm going to do as a revision. Right now we are doing permutation combination. So let's go ahead with permutation combination. Okay, 5 distinct books of English. Be careful, read the question carefully. 5 distinct books of English are the same nahi hai, distinct book. Books English ke hai, but distinct. What do you mean by distinct? Different. Distinct book. So question, read carefully. That distinct book means English ka maybe by author A, English book by author B, author C, and so on. Okay. Then 3 distinct books of Hindi. 5 English, 3 Hindi, and 7 books, distinct books on Marathi. 7 distinct books. So all books are distinct, different. Answer the following questions. The first one. Same subject books together. Chalo, I want to keep same subject books together. Answer. Good. चलो बाकी जन के लिए मैं बोल देता हूँ, और नहीं समझाए तो समझ लेना. जिनको तकलीफ है, दिक्कत है, नहीं समझाए टॉपिक तो समझ लेना. Now, how many subjects we are having? 3 subjects. So कितने ग्रुप हो गए अपने पास? 3 ग्रुप्स हो गए. तो उस ग्रुप का 3 फैक्टोरियल. तीन सब्जेक्ट्स तो 3 ग्रुप बराबर है. 1 group is of
English, one group is of Hindi, and one group is of Marathi. Now into English के books कितने हैं? 5. So into 5 factorial. Into हिंदी के book कितने हैं? 3. So 3 factorial. Into 7 factorial. This 5 factors for English. E लिखता हूँ मैं. 3 factorial is for Hindi, and the 7 factorial is for Marathi. डाउट रहेगा जिसको समझ लेना. 3 ग्रुप समझ में आ गए जिनको डाउट रहेगा. 1 group is of English, another group is of Hindi, and 1 group is of Marathi. 3 groups can be arranged in 3 factorial ways. Now in each group, the subject, the books can be further rearranged in factorial ways. 5 factorial, 3 factorial, and 7 factorial. Next, English books together. सिर्फ English के books एक साथ रखने मेरे को. English books together. Those 5 books which are in English has to be together. Correct. इसका आंसर आएगा English books together. Other than English, बाकी कितने बुक्स है? 10. और एक इंग्लिश का ग्रुप बनाएंगे वो 11 factorial. into इंग्लिश के कितने बुक्स है? 5. so 5 factorial. 5 factorial का है इंग्लिश का. सर 11 कहां से आ गया? 11 आ गया 1 group of English books. इतने जगह नहीं तो नहीं लिखता हूं मैं. one group of English books plus 3 Hindi H plus 7 Marathi. 1 plus 3 plus 7 कितना हो गया? 11 हो गया ना. 11 factorial into 5 factorial. हिंदी बुक्स टुगेदर. अभी ये सब ट्राई करो. तो आना चाहिए अभी. जैसे ऊपर किया वैसे ही करना है. Others also please participate. Yes, हिंदी बुक्स टुगेदर. सो क्या हो जाएगा? हिंदी का एक ग्रुप बनाएंगे. 1 group of Hindi. ग्रुप ऑफ हिंदी 1G लिखा ग्रुप ऑफ हिंदी. हिंदी छोड़ के कितने बुक्स है? 5 इंग्लिश के, 7 मराठी के बुक्स. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. तो 5 plus 7 12, 12 plus 1 13. so 13 factorial हो गया. into हिंदी के कितने बुक्स है? 3 बुक्स है. 3 factorial हिंदी. नेक्स्ट, मराठी बुक्स टुगेदर. करेक्ट. अभी नहीं लिखता, अभी सबको समझ में आ गया तो कुछ बाइफर्केशन नहीं लिखता, डायरेक्ट आंसर लिखता हूं मैं. आंसर इज योर
9 फैक्टोरियल इनटू मराठी के कितने बुक्स है 7 फैक्टोरियल। 9 समझ में आ गया कहां से आया 9? एक ग्रुप का, चलो वो भी लिख देता हूं, इसको भी क्यों लिखूं। वन ग्रुप ऑफ मराठी बुक्स प्लस 5 इंग्लिश बुक्स प्लस 3 Hindi books makes it as 9. So one group of Marathi books, 7 books together because we want them to be together. Then 5 English and 3 and 7 Marathi books. English and Hindi books together. English and Hindi books together. Correct. 8 factorial into 8 factorial. एट फैक्टोरियल कहां से आया 8 फैक्टोरियल? वन ग्रुप। नाउ दिस ग्रुप का ग्रुप बनेगा इंग्लिश प्लस हिंदी का। तो बाकी कौन से बुक्स बचे? मराठी के बुक्स बचे 7 मराठी। दिस ग्रुप, वन ग्रुप इज ऑफ व्हाट? इंग्लिश एज वेल एज हिंदी का वन ग्रुप। इंग्लिश हिंदी वन ग्रुप प्लस 7 मराठी बुक्स, दैट इज 8 फैक्टोरियल इनटू इंग्लिश प्लस हिंदी मिला के कितने बुक्स हो गए? 8 बुक्स हो गए। 8 फैक्टोरियल। फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस 8? 5 इंग्लिश प्लस 3 हिंदी, जो ग्रुप में हो। नेक्स्ट, ये तो आराम से आना चाहिए। व्हाट इज सिमिलर क्वेश्चन? हिंदी एंड मराठी बुक्स टुगेदर। आंसर इज 6 फैक्टोरियल। कहां से आ गया 6 फैक्टोरियल? हिंदी और मराठी मिला के वन ग्रुप। हिंदी और मराठी हो गया, बचा इंग्लिश। प्लस इंग्लिश के कितने बुक्स है? 5 इंग्लिश बुक्स। देयरफॉर दिस 6 फैक्टोरियल इनटू हिंदी और मराठी मिला के कितने बुक्स हो जाएंगे? 10 बुक्स हो जाएंगे। 10 फैक्टोरियल हिंदी प्लस 7 मराठी बुक्स। Marathi and English books together. मराठी और इंग्लिश, इनका एक ग्रुप बनाएंगे। टुगेदर का ग्रुप बनाने का रहता है। मराठी और इंग्लिश हो गया, बचे कितने? हिंदी के 3 हिंदी बुक्स। कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल हो गया इनटू मराठी प्लस इंग्लिश बुक्स 12 बुक्स हो जाएंगी। 12 फैक्टोरियल। कहां से 12 फैक्टोरियल? 7 मराठी प्लस 5 इंग्लिश। Anybody want to take screenshot? Take screenshot. हो गया? चलते आगे।
इंग्लिश बुक्स आर सेपरेटेड। इसके पहले जरा देख लेते कितने कितने बुक्स है। 5 इंग्लिश, 3 हिंदी, 7 मराठी। इधर लिख देता हूं मैं, अपने पास बुक्स जो है इधर नीचे लिख देता हूं मैं। 5 इंग्लिश है, 3 हिंदी है एंड 7 मराठी बुक्स आ गई। चलो, इंग्लिश बुक्स आर सेपरेटेड or they may say the same question, English books should not be together or are not together. No English books are together. Waiting for your answer. Good, Rishabh. Ethan, good. Kusum, correct. करेक्ट करेक्ट। चलो, अभी इसमें जिनको नहीं आता उनके लिए बता दूं, क्या बोला है? इंग्लिश बुक्स सेपरेटेड, इंग्लिश बुक को अलग। इंग्लिश को बाजू रखो अभी फिलहाल, इनको अरेंज करो। इंग्लिश को बाजू में रखो तो कितना बनेगा? इंग्लिश छोड़ के अदर देन इंग्लिश कितने बुक्स है? 3 हिंदी एंड 7 मराठी, तो कितने हो गए? 10 फैक्टोरियल। तीनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, 10 फैक्टोरियल। 10 किधर से आ गया मेरे पास? 10 कहां से आ गया? तो कौन से बुक सेपरेट होने चाहिए? इंग्लिश। तो इंग्लिश छोड़ के बाकी कितने बुक्स बचे हैं? 10। 3 हिंदी प्लस 7 मराठी। नाउ यू हैव अरेंज दोस 10 बुक्स, तो गैप कितने बनेंगे अभी? n plus 1, that is 11. So into 11 p, कितने बुक्स अरेंज करने इंग्लिश में? 5। 11 p 5। समझा? अगर आगे ही जाना है आपको तो कुछ ऐसा आएगा, 10 फैक्टोरियल into 11 p 5, 11 into 10 into 9 into 8, 1 2 3 4 हो गए, into 7। और आगे जाना है तो इसको और इसको पकड़ के कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल into 11 is 11 फैक्टोरियल into 10 into 9 into 8 into 7। ऐसा भी कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है देखना पड़ेगा। यस, एक्सपेक्टेड आंसर आपके पास यही था मेरे को। दिस वाज द एक्सपेक्टेड आंसर, अंडरलाइन किया हो। 10 फैक्टोरियल into 11 p 5, बट उसके अलग अलग टाइप थे। नेक्स्ट, हिंदी बुक्स आर सेपरेटेड। अभी तो आराम से करने को आ जाएगा। हिंदी बुक्स सेपरेटेड, तो हिंदी के बुक बाजू में रखो। कितने बुक बचते हैं हिंदी छोड़ के? 5 and 7। 5 बुक्स ऑफ इंग्लिश, 7 बुक्स ऑफ मराठी। सो 5 and 7 कितना हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। इनटू बाटा बुक अरेंज किए तो प्लस 1 गैप बन जाता है 13। इधर चाहिए तो पहले लिखो 11 के इधर। व्हाट इज 11? 11 इज गैप, 11 gaps and 5 is your English books. तो इधर गैप कितने बनेंगे? 13 गैप बनेंगे। और कितने बुक अरेंज करने हिंदी के? 3। 13 p 3, 13 इज द गैप्स। समझ में आ रहा है रे? जिनको डाउट होगा दोज हु आर आंसरिंग गुड। बाकी एड्रियन आंसर भी नहीं कर रहा एक भी। एड्रियन आंसर दिया? गुड आफ्टरनून किया था, आंसर नहीं दे रहा है। एक समझाने के बाद नेक्स्ट आंसर देने का ना, ये आंसर ओके मैंने नहीं देखा। मराठी बुक सेपरेटेड, मराठी बुक सेपरेटेड। फटाफट अभी आंसर आने चाहिए।
गुड। मराठी बुक सेपरेट है, तो मराठी छोड़ के कितने बुक्स है? 8 बुक्स है। सो 8 फैक्टोरियल, इसको सेपरेट करना है, उसको बाद में अरेंज करेंगे। इनटू 8 फैक्टोरियल किया, गैप कितने बनेंगे? 9। 9p। मराठी की बुक कितने हैं? 7। 97। ठीक है, ठीक है, मानो समझ में आ गया है, मानो समझ में आ गया। मालूम है वो एस्ट्रेस एंड एक साथ है। डोंट वरी, उतना समझ में आ जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये खत्म हो जाते हैं यहाँ पे।